Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 1 का मॉड्यूल 2 इंडिया नेचुरल इन्वायरमेंट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट लेसन 10 क्लाइमेट जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students. Now we are going to cover up next topic which is mechanism of monsoon. So let's start. The word monsoon is derived from the Arabic word mawsim which means season. Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. During summer, the interior parts of North Indian plains covering Rajasthan, Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh are intensely hot. The daily maximum temperature in some of these parts is as high as 45 to 47 Celsius. Table 10.1 given below indicates the climatic diversity in India. Try to understand the varying temperature that different stations in India have. जो वर्ड मॉनसून है वो अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है। इसका मतलब होता है सीजन मीन्स मौसम। मॉनसून रिफर करता है सीजनल रिवर्सल विंड डायरेक्शन को एक ईयर के दौरान। गर्मी के दौरान जो इंटीरियर पार्ट से नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का जैसे कि राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। यहाँ का जो डेली मैक्सिमम टेम्परेचर है इसके कुछ पार्ट्स में बहुत ज्यादा हाई होते हैं, 45 डिग्री से 47 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पे टेबल 10.1 दिया गया है नीचे, जो इंडिकेट कर रहा है क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी, भारत की क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी को। और आप इस टेबल को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर डिफरेंट स्टेशन पे किस प्रकार से दिए गए हैं। Here is table 10.1 which depict temperature in degree Celsius and rainfall in centimeter. The average maximum temperature is above 33 degrees Celsius in the month of May at Delhi and Jodhpur. Such high temperature heats up the air of that region. Hot air rises, low pressure area is created under it. This low pressure is also known as monsoonal trough. It lies between Jaisalmer in the west and Balasore in Odisha in the east. तो जो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है मई के महीने में दिल्ली में और जोधपुर में। ऐसे हाई टेम्परेचर क्या करते हैं, हवा को बहुत गर्म कर देते हैं, उस रीजन की हवा को। और ये जो गर्म हवा है वो ऊपर जाता है और जो लो प्रेशर एरिया उसके अंदर में क्रिएट होते हैं। ये जो लो प्रेशर है इसे हम लोग मॉन्सूनल ट्रो के नाम से भी जानते हैं। और ये जैसलमेर वेस्ट में और बालासोर उड़ीसा ईस्ट में ये लाइज करते हैं, मीन्स ये पड़ते हैं। ठीक है। नाउ हियर इज फिगर 10.2 विसुअल टेम्परेचर ऑफ मे। यहाँ पे आपको मई में टेम्परेचर डिफरेंट पार्ट्स में कहाँ पे कौन से टेम्परेचर होते हैं, क्या टेम्परेचर होते हैं, वो यहाँ पे डिपिक्ट किए गए इस मैप में। On the other hand, temperature over Indian Ocean is relatively low, as water needs more time to get heated as compared to land. So, a relatively high pressure region is created over the sea. See the map 10.2 given above and try to understand the given phenomenon. वहीं दूसरी तरफ जो टेम्परेचर है इंडियन ओशन का वो थोड़ा सा लो होता है, क्योंकि जो पानी है उसको ज्यादा टाइम चाहिए होता है गर्म होने के लिए लैंड के कंपैरिजन में। इसलिए जो रिलेटिवली हाई प्रेशर है उस क्षेत्र का सी का वो थोड़ा सा कम होता है लैंड से। जैसे कि आप मैप 10.2 में देख लोगे ऊपर में और समझने की कोशिश करो कि कौन सा फेनोमेनन वहां पे समझाया गया है। Thus, there is a difference of temperature and resultant pressure over north central Indian plains and Indian Ocean. Due to this difference, air from high pressure region 2 of the sea starts moving towards the low pressure region of North India. Thus, by mid-June, the general movement of air is from equatorial region of Indian Ocean to the Indian subcontinent, and the direction of these winds in general in from southwest to northeast. This direction is exactly opposite to that of the trade winds northeast to southwest prevailing during winter in India.
This complete reversal of wind direction from northeast to southwest and vice versa is known as monsoons. So यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखेंगे टेम्परेचर और रिजल्टेंट प्रेशर नॉर्थ सेंट्रल इंडियन प्लेन्स और इंडियन ओशन का। इस डिफरेंस की वजह से जो एयर है वो हाई प्रेशर रीजन से क्या करता है, ये मूव करता है, ठीक है, और ये समुद्र की ओर जाता है लो प्रेशर रीजन ऑफ नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में। और जून के मिड में क्या होता है कि जो जनरल मूवमेंट होता है ना हवा का, वो इक्वाटोरियल रीजन से इंडियन ओशन के बीच से उठ के आता है और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में जाता है। और इसका जो डायरेक्शन है विंड्स का, वो जनरली किस ओर रहता है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। ये जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली किसके अपोजिट है, ट्रेड विंड्स के, जो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट में जाता है। ये पूरे इंडिया में विंटर के टाइम में प्रिवेल करता है। ये जो कंप्लीट रिवर्सल है हमारे विंड डायरेक्शन का नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर और इसी तरह आगे भी होते रहता है, इस चीज को हम लोग मानसून के नाम से जानते हैं। एंड नाउ हियर इज द फिगर 10.3 विच शोज टेम्परेचर ऑफ जून। हम लोगों ने फिगर 10.2 में टेम्परेचर ऑफ मई देखा, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर ऑफ जून देख रहे हैं। ओके, so these winds originate over warm seas, therefore they contain a lot of moisture. When these moisture-laden winds move over the Indian subcontinent, they cause widespread rain throughout India, and from June to September, 80% to 90% of the total rainfall in India is confined to this 4 months only. तो ये जो winds है वो गर्म समुद्र की ओर से ओरिजिनेट होता है, इसलिए इसमें बहुत सारे मॉइस्चर होते हैं, नमी होते हैं। अब ये जो नमी वाला जो हवा है जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर मूव करता है तो इसकी वजह से बारिश होता है पूरे इंडिया में। जून से सितंबर के बीच में 80% से 90% तक टोटल रेनफॉल होता है भारत में, ठीक है, सिर्फ यही 4 महीनों की वजह से, महीनों में। नाउ लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉनसून। हम लोग मॉनसून के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। मॉनसून्स आर नॉट स्टेडी विंड्स, they are irregular in nature, affected by different atmospheric conditions, that is due to regional climatic conditions, sometimes monsoon early or sometimes late। तो जो मॉनसून है वो एक स्टेडी विंड्स नहीं है, वो इरेगुलर है नेचर में, मीन्स इसमें डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इसमें लागू होते हैं, जैसे कि रीजनल क्लाइमेटिक कंडीशंस। कभी कभी मानसून जल्दी आ जाता है और कभी कभी लेट से आता है। Monsoons are not equally distributed. Coastal areas like Kerala, West Bengal, and Orissa receive heavy rainfall, whereas interior regions like Haryana, Madhya Pradesh receives less rainfall. तो जो मानसून है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है, जैसे कि समुद्री जो क्षेत्र है जैसे कि केरल हो गए हैं, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा, वहां पे ज्यादा रेनफॉल होता है, हेवी रेनफॉल होता है। वही जो इंटीरियर रीजन है जैसे कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, यहाँ पे कम रेनफॉल होता है, मीन्स कम बारिश होती है, ठीक है। When monsoon arrives, it gives heavy rainfall which continues for several days. This is known as burst of monsoon. This occurs mainly at Kerala coast where it reaches first. तो जब मॉनसून आता है तो इसमें बहुत ज्यादा तेज रेनफॉल होते हैं और ये कई दिनों तक चलता है, जिससे हम लोग बर्स्ट ऑफ मॉनसून के नाम से भी जानते हैं। और ये मेनली केरला के कोस्ट पे होता है जहाँ पे ये मॉनसून विंड पहले पहुंचता है। Okay, now here is your in text questions 10.2. Try to solve all these questions. वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर के इंडेक्स क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.